Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हेलो। अच्छा। यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ मैम, अभी आ रही है आवाज, वॉइस आ रही है। अच्छा। तो स्टार्ट कर सकते हैं मैम या वेट करते हैं? हाँ, तब तक वेलकम कर लो, सबका वेलकम करना शुरू कर यस सकते हैं। यस मैम, यस मैम। Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I am Dr. Bharti Mahajan, Assistant Professor, Department of Botany. I wishes you all a very happy World Environment Day, for whose celebration we all have gathered. I heartily welcome you all to this one-day national webinar on mucormycosis, causes, remedies, and precautions, organized by Department of Botany and Eco Club, SBN Government PG College, Padwani. In this program, first of all, I would like to welcome our Chief Patron, Principal, respected Dr. Anil Gupta sir, with whose cooperation this program has been organized, but today he is busy in some administrative meeting. So today, please participant and mute your mic. There is a echo, there is disturbance. Please. So today's program will be chaired by respected Principal Dr. R.N. Shukla sir. Uh, we'll highly obligate for his presence. It's a moment of extreme pleasure and privilege to welcome our patron, Head Department of Botany Eco Club Coordinator, respected Dr. Veena Satya ma'am. She's always been our source of inspiration and motivation, under whose expert direction this program has been organized and is progressing towards great success. Now, I heartily welcome our eminent speaker, respected Dr. Anupam Batra sir, ex-GDU Hospital, New Delhi, the main speaker of today's program, as we are facing a mucormycosis along with this COVID-19 pandemic. He will discuss about mucormycosis, causes, remedies, and its precaution. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and coming over for this webinar. I warmly welcome uh, please mute your mic. So I warmly welcome Dr. Sapna Goyal ma'am, Assistant Professor, Department of Botany, and the coordinator of today's program, whose efforts have led this program to success. I'm glad to welcome all the eminent faculty of the Department of Botany, SBN PG College, Barwani, to this program. I feel delighted to welcome all the distinguished participants and students
who took out their valuable time and joined us today to be a part of this national webinar. We are honored to have you all with us. Today, we are going to discuss about highly relevant topic, though these are the gloomy times. But yes, we have to march ahead, move ahead, and discussion on this will certainly prove very beneficial to our distinguished participants. Today, there is a echo sound is coming from someone. Please, please mute your mic. Please mute your mic. So today we are going to ma'am, mute. Sapna ma'am, please check it here. Okay. So today we are going to discuss about highly relevant topic, though these are the gloomy times. But yes, we have to march ahead, move ahead, and discussion on this will certainly prove very beneficial to raise awareness about the environment and the damage that human activities to do it. In 1972, the UN General Assembly designated 5th June as a World Environment Day. The first World Environment Day was celebrated in 1974 with the theme Only One Earth. The theme for this year is ecosystem restoration. It is very related to this pandemic situation. Ecosystem restoration can take many forms: growing trees, greening cities, rebuilding gardens, changing diets, or cleaning up rivers and coasts. This is the generation that can make peace with nature. All kind of ecosystem can be restored, including forests, farmlands, cities, wetlands, and oceans. Healthier ecosystem with richer biodiversity yield greater benefits such as more fertile soils, bigger yields of timber and fish, and large stores of greenhouse gases. The main idea behind celebrating World Environment Day is to highlight the importance of the environment and to remind people that nature should not be taken for granted and must be respected for its values. But the disposal of medical waste like disinfectants, masks, gloves, and the burden of untreated waste has also increased multifold during the pandemic. Furthermore, once the situation bounces back to normal, the environment may start suffering again. Long-term goals and proper implementation of strategies and policies are the need of hour for global environment sustainability. The schedule of the seminar will focus on the topic of mucormycosis, causes, remedies, and precaution. It will include more issues to address the full aspects of the topic. As mucormycosis is a serious fungal infection but otherwise rare, has been observed in number of COVID-19 patients recently. It is caused by exposure to mucor mold, which is commonly found in soil, plants, manure, and decaying fruits and vegetables. It has an overall mortality rate of 50%, maybe being triggered by the use of steroid, a life-saving treatment for severe and critically ill COVID-19 patients. I'm sure this conference enlightens us all and provide us with approaches to deal with the problems of tomorrow. It will be meaningful, thought-provoking, and useful to all participants. Stay home, stay safe, as health is our wealth. Thank you. With these words, I would like to invite our patron, Head Department of Botany, Eco Club Coordinator, respected Dr. Veena Satya ma'am, for her welcome speech. Ma'am, please welcome. Dr. Veena Satya ma'am, please welcome for your speech. Sapna ma'am, are you there? Respected ma'am, please welcome for your
Please. Okay. So, a very good morning to all of you. Bharti, am I audible? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, okay. So, good morning to Dr. Batra. Welcome, sir. Hello, sir. Hello. Yeah. हमारे शुक्ला सर भी ज्वाइन कर सके, प्रिंसिपल जो है डॉक्टर आनंद शुक्ला जी भी ज्वाइन कर। हेलो सर, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, शुक्ला सर वेलकम। नमस्कार मैडम, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। उनको नमस्कार करते हैं। ओके सर, ओके सर। डॉक्टर बत्रा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सो जैसा कि सबको मालूम है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पर हम सब यहाँ पर वेबिनार के लिए इकट्ठे हुए हैं और पर्यावरण विषय पर नागरिकों को जागरूक करने और पर्यावरण संरक्षण को सकारात्मक कार्य हेतु प्रेरित करने के लिए ये 5 जून को हर साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा विद्यालय जो है एप्को भोपाल पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान के प्रति आभारी है, जिन्होंने हमें इको क्लब परिवार का सदस्य बनाया है और इसी इको क्लब के माध्यम से हम ये वेबिनार आयोजित करने जा रहे हैं। ये विगत लगभग 15 महीनों से हम एक ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, जिसने करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिया है और लाखों लोगों की अपनी जान चली गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान के बड़े बड़े दावे करने वाले और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं से सुसज्जित सुविकसित जो देश हैं, उन्होंने भी इनके सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन वैक्सीन के आने के बाद कुछ हद तक जो है इस पर काबू भी पा लिया गया है। 2 लाइनें बहुत ही रिलेवेंट है इसके लिए कि मुल्कों को बहुत नाज था अपने अपने परमाणु पर, लेकिन सारी कायनात बेबस हो गई आज एक छोटे से विषाणु पर। सो इस वायरस ने इतना धमाल मचाई है और न केवल अकेले वायरस ने, बल्कि अब तो उसके संगी साथी भी जो है वो दावा छुड़ाने के लिए आने लग गए हैं। अपने साथ में अभी एक नया संक्रमण लेके आई है, जिसको कि हम ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के नाम से जानते हैं। जो प्रतिभागी साइंस के नहीं हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फंगस या फफूंद प्लांट वर्ल्ड का ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा वर्ग होता है जिसमें क्लोरोफिल न होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं और केवल डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर में मिट्टी भी हो सकती है, हवा हो सकती है, सड़े गले पदार्थ हो सकते हैं, पत्तियां हो सकती हैं, लकड़ी हो सकती है, शर्करा हो सकती है। लेकिन इनका एक विशेष गुण ये होता है कि ये शुगर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और नमी की उपस्थिति में, 3 चीजें इनके लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। एक तो शुगर मटेरियल हो, दूसरा जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो और तीसरा जो है वो ह्यूमिडिटी हो, नमी हो। इन तीनों की उपस्थिति में ही ये अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और इनका जो नेचुरल हैबिटेट था, जो कि प्रकृति में था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद अब इन्होंने मनुष्य के शरीर को भी जो है अपना घर बनाना शुरू कर दिया है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। इकोसिस्टम जो है, जो हमारे वातावरण को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, मनुष्य उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये। लेकिन इकोसिस्टम केवल शरीर के बाहर ही नहीं होता है, शरीर के अंदर भी होता है। सो हमारे मनुष्य के अंदर का जो इकोसिस्टम है, उसको ये म्यूकरमाइकोसिस किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, हम आज उसके बारे में ही जानना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े इस गंभीर, विचारणीय एवं ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अनुपम बत्रा जी। इनका मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर अनुपम बत्रा was born and brought up in New Delhi. He completed his schooling from New Delhi. He moved to Madhya Pradesh in 2007 for his MBBS. He has completed his MBBS from Madhya Pradesh Medical Science University. He did a lot for rural health. He always wanted to work in rural India and help to people in misery and
2010. He did his PG in ENT and head and neck surgery in 2016. Presently working as ENT specialist in district Badwani since 2019 under National Health Mission. He has published various posters and papers related to rare diseases and infections of ENT in international and national journals. So we are very happy to be present in this webinar, and we hope that we will be enlightened by his knowledge. So most welcome, Dr. Anupam Batra. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Dr. Bharti Mahajan. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am, for your keynote address on the topic of today's webinar and marvelous introduction of our eminent speaker, Dr. Anupam Batra, sir. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, shall we start the session? या कुछ लोग और आने वाले हैं, या मतलब should I start the presentation? Yeah, sir. You can start, sir. Ma'am, just need to confirm कि सब कुछ अभी स्क्रीन पे आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Your screen is visible. Okay. जितने भी मेरे साथ दोस्त हैं, मेरे लोग हैं, आप लोग, मेरी फैकल्टी, सब लोग, मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनुपम बत्रा है। मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ, ENT सर्जन। अभी हमने बहुत सारी चीजें मीडिया में सुनी, सब जगह सुना अबाउट म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, बहुत आसान भाषा के अंदर। ये चीज कोई नई नहीं है मीडिया में, या अभी हम सब इसके बारे में जानना स्टार्ट करें हैं, बट ये कोई नई चीज नहीं है। ये हम बहुत टाइम से सब चीजें किताबों में और सब चीजें पढ़ते हुए आए हैं, बट अभी एकदम से मीडिया में क्योंकि इसका चलन हो गया और एकदम से सब चीजें इसके सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी बिना किसी चीज को जाने हुए लोग एक राय बना के इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा आज का बस यही प्रयत्न रहेगा कि मैं इसके बारे में जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों को एक आसानी भाषा के अंदर समझा सकूं, ठीक है, और उससे काफी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए और जिससे कि वो आगे पास ऑन हो, जिसको भी आप समझाना चाहें या आपके घर परिवार। आपको कोई भी डाउट होता है, हम उसके लिए एक क्वेरी सेशन बाद में रखेंगे आफ्टर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके मैम, प्रेजेंटेशन दिख रही है? Yes, sir. मैम, इंट्रोडक्शन में दिख रही है आपको? Yes, sir. Introduction slide is visible. ओके चलिए। तो म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब है कि जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इमीडिएटली होता है, इमीडिएटली आपको बीमार करता है। और ये उससे पहले सॉइल में, मतलब आराम से किसी भी मिट्टी में या हवा में, स्पोर्स में बहुत आसानी से पाया जा सकता है। अब अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब क्या? ये किनको कर हो सकता है? जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, मतलब जिनकी जो खुद की लड़ने की शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो लो है। जैसे कि किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, एड्स हुआ हो, या कोई भी जन्मजात की बीमारी हो। इसके साथ खासकर वो लोग प्रभावित होते हैं जिनको डायबिटीज की शिकायत हो, यानी कि शक्कर की बीमारी की शिकायत हो। उसमें भी वो लोग ज्यादा होते हैं जिनकी शक्कर की जो शक्कर है वो बहुत अनकंट्रोल्ड हो, शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड, डायबिटीज मेलाइटस हो। इससे पहले, आज से पहले ये बीमारी सिर्फ उन लोगों को हुआ करती थी जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो या इम्यूनिटी लो हो। बट अभी के जमाने में हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 जो पैंडेमिक आया, इसके साथ साथ वायरस के बाद एकदम से फंगल इन्फेक्शन होना चालू हुआ, तभी हम इसके बारे में जानने लगे। तो पहले हम थोड़ा सा कोविड-19 को समझते हैं, फिर हम इस क्यों हो रहा है इसके संबंध में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को समझेंगे। तो कोविड-19 जो होता है एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, एक छाती की बीमारी है, which creates a hypercoagulable state along with the immunomodulatory condition of the human body। अब ये थोड़ा भारी शब्द हो गया, तो मैं आसानी भाषा में समझाता हूं। हाइपरकोagulable स्टेट का मतलब होता है खून को गाढ़ा करना। कोई भी चीज, कोई भी बीमारी या कैसी भी दवाई जो खून को गाढ़ा कर दे, मतलब कि हाइपरकोagulable स्टेट हो गया। तो ऐसी चीजों में बहुत सारी चीजें दिक्कत आती हैं। अब कोई भी चीज गाढ़ी हो जाती है तो वैसे ही वो धीरे धीरे मतलब आगे खिसकेगी, तो बीमारियां होना या वहां पर ज्यादा देर तक रुकना, उसकी वजह से, मतलब ब्लड का ज्यादा देर रुकने की वजह से बीमारियां और चिपकने लगती हैं। तो कोविड-19 आपके खून को गाढ़ा कर देता है, एक हाइपरकोagulable स्टेट में ले आता है, ठीक है, और आपकी इम्यूनिटी को उल्टा कर देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है।
ठीक है। अब हम इसको ठीक करने के लिए कोविड-19 को जब हम ठीक करते हैं या फिर मतलब अब इसके इलाज के दौरान हम कुछ चीजें चलाते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स जैसे कि टोसिलिजुमैब विच इज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, जो इम्यूनिटी को और कम करती हैं ताकि पेशेंट वापस से रिकवर हो सके। तो इन सब चीजों का हमने काफी यूज किया है कोविड-19 में फॉर द ऑब्वियसली फॉर द गुड ऑफ पेशेंट। So a combination of weakened immunity, मतलब कम immunity with all these diseases, along with the drugs which are being used for the treatment, which further decreases the immunity, plus some predisposing factors, such as जो मैंने आपको बताया जैसे कि डायबिटीज हो गया, या पेशेंट किसी कैंसर की बीमारी के लिए सिकाई ले रहा है, कीमोथेरेपी, या फिर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी का ट्रांसप्लांट, या किडनी ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो उनके अंदर ये और ज्यादा पाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि कोविड से काफी लोग रिकवर हुए, बट हर किसी को नहीं हुआ है। यही रीजन है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम स्टेरॉइड्स कितने दिए हैं उनको, डायबिटीज है या नहीं, ट्रांसप्लांट की क्या स्टेज है, अंदर की इम्यूनिटी पावर खुद की कैसी है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इन एनी पेशेंट हु हैज करंटली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, जैसे कि मैंने आपको बताया हाई रिस्क हमें ग्रुप पहचानना है कि हाई रिस्क कौन हो सकता है। पहला डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शक्कर की बीमारी, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, पेशेंट किसी कीमोथेरेपी पे है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैंसर। न्यूट्रोपीनिया, मतलब जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कम हो गए, जो एक ब्लड के अंदर पैरामीटर होता है जो हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सिवियर माल न्यूट्रिशन, बहुत ही कमजोर, एनीमिया है, लिवर डिजीज है, ठीक है, अल्कोहलिक्स हो गए, या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड यूज। इसके अंदर पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमारे एरिया बड़वानी के अंदर आसपास थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स काफी हैं, तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है। इसके अलावा नोन केस ऑफ HIV, एड्स या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो उनके अंदर ऑब्वियसली जिसके अंदर भी इम्यूनिटी थोड़ी कम है उनके अंदर ये सब चीजें अपने को परेशान करेंगी और थोड़ा सा पेशेंट को प्रीडिस्पोज करेंगी टुवर्ड्स दिस डिजीज। अब म्यूकरमाइकोसिस इससे पहले, आज से इस कोविड-19 पैंडेमिक से पहले थोड़ा रेयर था, विच अफेक्ट्स फ्यूअर देन 1.7 पीपल पर मिलियन पॉपुलेशन, तो काफी कम इंसिडेंस था। इट इज अराउंड 80 टाइम्स मोर प्रेवलेंट दैन इंडिया। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि इंडिया में इतना प्रेवलेंट क्यों है ये चीज। हमारी कंट्री इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है, मतलब नमी रहना, ह्यूमिडिटी विद बारिश, सॉइल, ये सब चीजें ट्रॉपिकल कंट्री इंडिया को बनाती है। तो यहां पर किसी भी चीज की ग्रोथ होना बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप सुबह का खाना रात को भी छोड़ दें, रात को देखें, तो एक काली काली परत बन जाती है ब्रेड के ऊपर या फिर रोटी के ऊपर, वही एक फंगस है, ठीक है। बहुत सारे फंगस के स्टेन्स होते हैं, जैसे एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस, जिसको हम व्हाइट फंगस भी कहते हैं। अब जो कोविड हुआ, कोविड के साथ जो एसोसिएशन हुआ वो हुआ अपना इसका म्यूकरमाइकोसिस का। तो कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस हैज स्पेशली अफेक्टेड पीपल इन इंडिया एंड सराउंडिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं ये। यहाँ पर जो फंगस है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है ग्रोथ करने का, ठीक है। द हाई इंसिडेंस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज, ठीक है, जो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लोगों को है, जो एक बहुत बड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। तो एज कंपेयर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री विद म्यूकरमाइकोसिस एज कंपेयर टू द नेबरिंग पार्टनर्स। अब होता क्या है, पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी जानते हैं कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास 4 साइनसेस होते हैं। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरे को सब सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास 4 साइनसेस होते हैं। माय स्लाइड इज नॉट विजिबल। स्लाइड इज विजिबल, यू प्लीज पिन द स्लाइड, मतलब आई मीन सर का जो है आप उस पर पिन कर लीजिए, आपको शो होने लगेगी। ओके मैम, अभी आप मेरे को क्या देख पा रहे हैं? अभी आप मैम दिख रही है स्क्रीन? सर आपकी स्क्रीन शो हो रही है, स्लाइड्स आर विजिबल। स्लाइड्स आर विजिबल ना मैम? यस सर। मैम अभी कौन सी स्लाइड दिख रही है आपको? एपिडेमियोलॉजी। अभी पैथोफिजियोलॉजी दिख रही है आपको? हाँ यस सर, पैथोफिजियोलॉजी। हाँ ओके, मैं यही समझा रहा था। तो हाँ, हमारे पास 4 साइनसेस होते हैं। अगर आप स्लाइड के नीचे देखेंगे तो वो साइनसेस हैं जो हमारे नाक के आसपास रहते हैं। हमने कॉमनली बहुत आराम से बोलते हैं कि साइनस की दिक्कत हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वही साइनसेस हैं।
बेसिकली साइनसेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारे चेहरे को हल्का रखने के लिए होते हैं। इसके अंदर नॉर्मली हवा होती है ताकि हमारा चेहरा इधर उधर आसानी से घूम सके, हम देख सके, ठीक है, और चेहरा हल्का रह सके। तो इन साइनसेस के अंदर ये छोटे से गड्ढे होते हैं, एयर फिल्ड पॉकेट्स कह सकते हैं आप इन्हें, जो आपके चेहरे में होती हैं, और ये 4 होते हैं, मैक्सिलरी, इथेमॉइड, फ्रंटल एंड स्फिनोइड, ठीक है। तो जो हमारे जस्ट नाक के दोनों साइड पे हैं, दीज आर मैक्सिलरी साइनसेस, और ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कोई भी कोविड पेशेंट है जो ऑक्सीजन लगा रखा है जिसने, और उसके जो स्पोर्स रहते हैं, अगर कोई भी गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज नॉट डिस्टिल्ड वाटर या एनी वाटर फॉर एनी चांस, ठीक है, जैसे लोगों ने किया है, तो उसके जो स्पोर्स रहते हैं वो इन साइनसेस में जाते हैं। अब बिकॉज द इम्यूनिटी इज लो, तो साइनसेस की वजह से हल्का हल्का एक फंगस की लेयर आ जाती है, ठीक है, साइनसेस के अंदर। तो वही चीज धीरे 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 अगर पेशेंट ख्याल नहीं रखता तो बढ़ जाती है। अब मैं एक बहुत ही ब्रॉड वे में समझा रहा हूं, आप साइनसेस की अगर फोटो देखेंगे तो जस्ट उसके ऊपर हमारी आंखें हैं, ठीक है। दिस इज वेयर द मेन रोल कम्स। इफ द फंगस क्रॉसेस द साइनसेस, अगर साइनसेस में से फंगस आगे बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द बोन इरोजन, मतलब कि हड्डी जो है वो फंगस खा गया, तो कहां जाएगा, इसके बाद सीधा आंख आती है। तो यहां से ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, साइनसेस जो होते हैं वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी रहते हैं, बट वहां पर हमारी जो इम्यूनिटी रहती है वो अच्छी रहती है। बट जैसे ही कोविड होता है इम्यूनिटी लो होती है, और वहां पर हमने ऑक्सीजन इनहेल किया या फिर हमने नॉर्मली भी किया, और पर्सन जो है वो ऑलरेडी ये डायबिटीज से सफर कर रहा है, तो एक तरीके से बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है फंगस को टू ग्रो, तो वो साइनसेस में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। एंड इसके साथ जनरली स्प्रेड बाय ब्रीदिंग, ईटिंग फूड्स कंटामिनेटेड बाय इट, और द मोल्ड्स जो हम बोलते हैं। इसके अलावा वो ऊपर जाती है, साइनसेस को इन्वेड करती है, ब्लड में जाती है, और ब्लड में क्लॉट्स बनाती है, ब्लड में खून के धब्बे बना देती है, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट होता है प्रोसेस। इसके बाद क्या होता है कि टिश्यू नेक्रोसिस होता है। टिश्यू बोले मतलब जो साइनसेस की लाइनिंग है, जो नॉर्मल चमड़ी है साइनस के अंदर, वो गल जाती है, सड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जो खून का प्रभाव है, खून का दौरा है, ब्लड सप्लाई है, वो पूरी तरह धीरे धीरे करके बंद हो जाती है और वो सड़ जाता है, और इसीलिए वो एकदम काला दिखता है। दिस इज ब्लैक फंगस, ठीक है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स मैं आपको बता चुका, इम्यूनिटी कम हो गई, ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स काफी हाई हैं, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया इसको फंगस को ग्रो करने के लिए। नॉर्मल बात है कि अगर हम घर में भी शक्कर का घोल या फिर चीनी का पानी कहीं गिर जाए, कोल्ड ड्रिंक गिर जाए, तो चींटियां आराम से आ जाती हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं। सेम चीज, अगर ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है और कहीं ना कुछ फंगस है, तो उसको जल्दी ग्रो करने का एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। वैसा ही होता है म्यूकरमाइकोसिस जो रहता है, बहुत ही एग्रेसिव फंगस है, बहुत ही एग्रेसिव। तो वो एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि वो बोन को भी गला देती है, इसलिए ही दिक्कत स्टार्ट होती है। तो जब म्यूकरमाइकोसिस होती है, बोन का इन्वेजन होता है और वो धीरे धीरे टिश्यू को नेक्रोज करती है, टिश्यू को सड़ाती है। अब हम नॉर्मली इसके बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। एक इनहेलेशन जो मैंने आपको बताया, इंजेशन मतलब अगर कुछ भी कंटामिनेटेड फूड आप खा रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस या बिकॉज ऑफ एनी फंगस, तो आपको अलग अंदर जाके भी आपके मतलब इंटेस्टाइन्स में भी जाके फंगस हो सकती है। या फिर इनॉक्यूलेशन, मतलब कोई ट्रॉमा हुआ आपको और कहीं से चमड़ी निकली या फिर स्किन लॉस हुआ उसके बाद, ठीक है, तो उसके ऊपर पता, क्योंकि वो भी एक ऐसा ही इन्वायरमेंट बनाता है, तो वो हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कहां पर हो सकता है ये, राइनोसेरिब्रल मतलब कि साइनसेस एंड ब्रेन, दिमाग में, पल्मोनरी छाती में बिकॉज ऑफ कोविड-19, और या फिर वीकेंड इम्यूनिटी जो छाती के अंदर हो सकता है, गैस्ट्रो सॉरी जी स्लाइड शो नहीं हो रही सर। सुरेश सर की जो स्लाइड वाला है आप उस पर पिन कर लीजिए, आपको शो होने लग जाएगी। ओके प्लीज स्टार्ट। ओके। जैसे राइनोसेरिब्रल, साइनसेस एंड ब्रेन, पल्मोनरी कॉजिंग न्यूमोनिया जो लंग्स को अफेक्ट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेट या फिर उससे संबंधित, प्राइमरी क्यूटेनियस, कभी कभार हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि स्किन, चमड़ी को भी वो पूरा का पूरा वो कर देता है, इफेक्ट कर देता है, और आपने देखा होगा इसी की वजह से खुजली स्टार्ट होती है जो बहुत कॉमन रहता है बारिशों में। तीसरा, पांचवा हो गया डिसेमिनेटेड मतलब मल्टीपल साइट्स, पूरे के पूरी बॉडी के अंदर फंगस फैल गया। ये काफी रेयर होता है और उन केसेस के अंदर होता है जिनकी
इम्यूनिटी सिवियरली इफेक्टेड हो, सिवियरली इफेक्टेड में एड्स हो गया, टीबी हो गए, ऐसे। तो अब हम मेन जो अभी बात हो रही है मीडिया में, राइनोसेरेब्रल, इट इन्वॉल्व्स आईज। मैंने आपको बताया आईज कैसे जाएगा, जब बोन परफोरेट हो जाएगी या बोन में इन्वेजन हो जाएगा। जब आईज तक पहुंच गया तो जो उसके पीछे ऑर्बिटल नर्व है विच इज गोइंग टूवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है, वो उसको ब्रेन में लेके जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल डिजीज। इट हैज इन्वॉल्व्ड ऑल द 3 प्लेसेस ऑफ द फेस, द नोज, द आईज एंड द ब्रेन, ठीक है। एंड जो ये फॉर्म है, इट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द मोर्टेलिटी, क्योंकि अगर दिमाग में पहुंच गया तो आप उस चीज को ऑपरेट नहीं कर सकते, या आप उस चीज का कुछ भी जल्दी से कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिन। अब इसके अंदर कैसे कैसे दिखता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें कैसे करते हैं। तो नेजल क्रस्टिंग, नोज एंड द साइनस म्यूकर इन्फेक्शन। पहली बात तो मैं बस एक नॉर्मल चीज बोलता हूं जो मैंने अभी तक भी समझाई, कि अगर हमें इस चीज के बारे में, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर तो कोई भी घर पे आपके पेशेंट है या फिर कहीं पर भी आपको कोई भी आपका नोन है जिसको कोविड हुआ, जस्ट कीप ऑन चेकिंग द शुगर लेवल्स, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 month, ठीक है। दो चीजें अपने को देखनी है। एक तो मैंने आपको बताया कि कोविड इज अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, मतलब खून गाढ़ा है। इस चीज को देखने के लिए हम डी डाइमर, एक जांच होती है जो हम करवाते हैं, ठीक है। तो डी डाइमर अपने को 1 महीने में लगभग हर हफ्ते 4 मतलब देखना है, प्लस डेली मॉनिटरिंग या फिर ऑल्टरनेट मॉनिटरिंग ऑफ शुगर करनी है, क्योंकि अगर शुगर हाई रहेगी तब ये सब चीजें हो सकती हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कोई भी कोविड का पेशेंट हो, 1 महीने तक कम से कम ये 2 काम तो करिए आप। अब इनके अंदर क्या क्या हो सकता है? हेडेक, नेजल ब्लॉकेज, नेजल क्रस्टिंग, डिस्चार्ज, ब्राउनिश रेडिश ब्लड जैसा, ठीक है, नमनेस ओवर द फेस, ये वाला एरिया, मैक्सिलरी एरिया जो है, जो मैंने आपको बताया ये, प्लस नोज के ऊपर वाला एरिया, यहां पर लॉस ऑफ सेंसेशन या फिर नमनेस हो जाएगी। पेशेंट की जनरल कंप्लेंट रहेगी सर रबड़ रबड़ जैसा फील होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो सप्लाई है, जो नर्व सप्लाई है वो बंद हो गई। देयर मे बी अ डिसकलरेशन ऑफ द स्किन और लोकलाइज्ड स्वेलिंग कॉल्ड एज फेशियल पफिनेस, तो थोड़ा ब्लैकिश स्किन या फिर ये वाली जगह ब्लैक हो जाएगी। कुछ केसेस के अंदर जो फंगस है वो साइनसेस को नीचे भी आ जाती है, तो खाना खाते वक्त दांतों में दर्द, डिसकलरेशन ऑफ द पैलेट, जो ऊपर का तालू होता है वहां पर हल्का काला काला निशान, ऐसे हो सकता है। अब अगर नीचे नहीं जाके ऊपर फंगस ने अफेक्ट कर दिया तो आईज के अंदर, आईज में स्वेलिंग हो जाएगी, पानी आएगा आंखों में से, दो दिखेंगे, डबल विजन कॉल्ड एज डिप्लोपिया। लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है इफ द नर्व इज अफेक्टेड, आई पेन होगा भयंकर। कई केसेस के अंदर पाया गया है व्हिच हैव द पेशेंट हैव सेड कि सुई जैसा चुभता है सर। तो हम 2 चीजों को लेके चलेंगे कि सुई जैसा चुभना, अनकंट्रोल अनबियरेबल पेन, पहली चीज। दूसरा, लॉस ऑफ सेंसेशन और द नमनेस ओवर द फेस। तो अगर ऐसी कहीं भी कंप्लेंट आए तो आप इमीडिएटली जो भी आपके पास ईएनटी सर्जन हो, या मैं जैसे बड़वानी में हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या कहीं पर भी आप किसी को भी कंसल्ट करें ताकि वो चीज जल्दी से पकड़ में आ पाए। अब मैंने बताया कि जैसे लंग्स को भी अफेक्ट करती है, इंटेस्टाइन्स को भी अफेक्ट करती है, तो ये काफी रेयर है अभी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है इस डिजीज को। नहीं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है फ्रॉम द स्टूल्स, और अभी काफी डिक्रीज हो गया है एज द, मतलब क्योंकि जागरूकता आ गई है जनता में। मैं कुछ पिक्चर शेयर कर रहा हूं, प्लीज घबराइएगा मत, बस देखिए एक बार। मैं बस सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी पिक्चर बन सकती है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अपने? हाँ, पहली पिक्चर है जो ब्लैक पोर्शन हो गया है एंड इट हैज इन्वॉल्व्ड द कंप्लीट मैक्सिलरी एरिया एज वेल एज द आईज। सेकंड पिक्चर है कि जो साइनस के नीचे आ गया है और पूरा का पूरा जो तालू है अपना वो काला हो गया है। नाक में भी आप देख सकते हैं खून आ रहा है और काला काला दोनों साइड पे दिख रहा है, यही ब्लैक फंगस है। ओके, तो कमिंग टू डूज एंड डोंट्स फॉर द पेशेंट्स या फिर पेशेंट के अटेंडेंट्स या आप लोगों के लिए, कि क्या है जो मैंने आपको बताया कि डायबिटीज हो, इमीडिएटली कंसर्न, मेंटेन बेसिक क्लीनलीनेस, ठीक है, सिम्टम्स को देखिए जो मैंने आपको बताया, और फिजिशियन के साथ रेगुलर फॉलोअप कीजिए। एटलीस्ट डी डाइमर का और आरबीएस का आपको खुद देख के चलना चाहिए, या जो भी आप फिजिशियन को दिखा रहे हो उनको दिखाइए। क्या नहीं जी, sorry to disturb you, जो but many participants are saying that your screen is not visible. Actually, I am मुझे तो हो रही है visible, बाकी लोगों को नहीं हो रही, तो एक बार आप प्लीज फिर से स्क्रीन शेयर कर दें तो मे बी उन लोगों को शो हो जाए। मैम मैं वापस से देख लेता हूँ, बिल्कुल।
मैम अभी जो स्क्रीन चल रही है आई गेस। हाँ, हाउ डज इट लुक्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, जो आपने शेयर किया था फोटो। अभी दिख रहा है मैम वो? हाँ, हाँ। सभी पार्टिसिपेंट को शो हो रहा है स्लाइड? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. It is visible. Yes, ma'am. It is visible. Okay, sir. Please continue. हाँ, तो ये दो पिक्चर्स आप सब लोगों को आई गेस समझ में आ गई। जो लोग अभी देख रहे हैं मैं उनको वापस समझाता हूँ कि एक मैक्सिलरी एरिया है जो ऊपर तक आईज को इफेक्ट कर दिया है, पूरा ब्लैक नेक्रोस्ट, जो मैं आपको बता रहा था कि टिश्यू जो है वो सड़ गया। दूसरा पार्ट है जो पैलेट है, ठीक है, पैलेट मतलब ऊपर का तालू, देखिए कैसा काला पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो साइनसेस के थ्रू पूरा का पूरा फंगस नीचे को अफेक्ट कर दिया है। तो पेशेंट को डेंटल पेन भी है। ऊपर नाक का हिस्सा देखिए, नाक में दोनों साइड पे आपको ब्लैक ब्लैक ब्लड दिख रहा है अलोंग विद द फंगस, यही ब्लैक फंगस है, ठीक है, और ये पूरे टिश्यू को खा गई है। दीज आर एंड रिजल्ट ऑफ द पेशेंट्स जो लेट आए हैं या जो कोविड में एडमिटेड थे और इसी दौरान हो गया, ठीक है। ओके, कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में सबको स्लाइड विजिबल है? नो सर। No, sir. ट्रीटमेंट की स्लाइड शो हो रही है? Yes, जिन ma'am. लोगों को शो नहीं हो रही है वो लोग प्लीज सर के जो आइकॉन है उस पे जो पिन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो होने लगेगी स्लाइड। जिन लोगों को शो नहीं हो रही है प्लीज ट्राई करिए। नहीं हो रही है। No, ma'am. नहीं हो रही है. Yes, ma'am. It is visible. प्रेजेंटेशन यू के ऊपर जो पिन होगा ऑप्शन सबसे पहली है, दिख रहा है अब? Yes, sir. जो सर आप सभी पार्टिसिपेंट्स जो आप हमारे रिस्पेक्टेड अनुपम बत्रा सर हैं, उनका जो आपको दिख रहा है आइकॉन, उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो वहां एक आपको पिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए तो आपको स्लाइड शो होने लगेंगे। मैम पिन Yes, ma'am. Yes, ma'am. भी शो नहीं हो रहा। आप पिन करेंगे तब होगा। कई लोगों को हो हेलो सर के सेकंड लॉगिंग पे पिन करेंगे तब होगा मैम, जिससे स्लाइड शो हुई क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. हो रही है। Yes, ma'am. ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक। तो ट्रीटमेंट के अंदर टू ट्रीट इट द बेसिक थिंग इज, जैसे मैंने बताया कि शुगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शुगर एकदम कम रहनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि शुगर को जो हम ब्लड कंट्रोल के अंदर लेवल्स में कंट्रोल करेंगे। नॉर्मल एक बात बताता हूं कि नॉर्मल शुगर बिफोर ईटिंग एनीथिंग यानी कि खाली पेट लगभग 99 के आसपास रहनी चाहिए। और अगर आप कुछ भी खाए हुए हैं या फिर मतलब पोस्ट लंच पोस्ट डिनर, इट शुड बी लेस देन 140 टू 190 के बीच में, ठीक है। अब अगर आपको सस्पिशन लगता है कि कुछ मतलब हो सकता है या सस्पेक्टेड केस है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोविड टेस्ट करवाते हैं कि अभी कोविड का स्टेटस क्या है। एंड देन अगर हम सीटी या एमआरआई में फाइंडिंग करते हैं या फिर नेजल एंडोस्कोपी, द बेस्ट पार्ट इज नेजल एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन से देखना। आप इससे अच्छी कोई भी चीज नहीं है कि आप उसको खुद से दूरबीन से देखो। आप नाक के अंदर दूरबीन डालिए, आप देखिए क्या है क्या नहीं है, उस चीज से हम बायोप्सी लेंगे, मतलब कि टुकड़ा लेंगे और उसको लैब में भेजते हैं टू कंफर्म इट, और एंटी फंगल ड्रग्स चालू करते हैं, ठीक है। पेशेंट के ऊपर मैंने आपको वापस से बताऊंगा, वापस से वही चीज देखते हैं कि अभी ब्लड की क्या स्थिति है, मोटा अभी भी है, गाढ़ा ब्लड अभी भी है या फिर नहीं, क्योंकि अगर गाढ़ा है तो आपको ब्लड को पतला करने की भी दवाइयां देनी है, ठीक है। अब किन केसेस के अंदर सर्जरी होनी चाहिए या किन केसेस के अंदर सर्जरी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम पीपल मेरे पास जब ओपीडी में या क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में आते हैं तो यही पूछते हैं कि सर सर्जरी होनी चाहिए, इसमें ही बिना उसके हो जाएगा। देखिए एक छोटी सी बात है, अगर फंगस कहीं पर भी अटैक कर गया, फंगस खा गया है उस टिश्यू को और नेक्रोज कर गया है यानी कि सड़ा दिया है, वहां पर खून का दौरा, ब्लड सप्लाई तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे, आप कोई भी दवाई देंगे, वो वहां तक पहुंचेगी कैसे जब ब्लड ही नहीं है, क्योंकि ब्लड इज अ मीडियम, ब्लड एक साधन है ना वहां पर ड्रग को पहुंचाने का, बट वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है तो क्या फायदा। तो उन केसेस के अंदर क्या, हर केसेस के अंदर मैं तो कहूंगा कि सर्जिकल डिब्राइमेंट इज इंपॉर्टेंट। सर्जिकल डिब्राइमेंट मतलब बहुत आसान है, वर्ड बहुत बड़ा है, बट डिब्राइमेंट काफी आसान चीज है। एज इन आपको जो खराब टिश्यू है, जो फंगस अफेक्टेड टिश्यू है, म्यूकोसा है, उसको आपको सब कुछ निकालना है, ठीक है। नॉर्मल म्यूकोसा अपने आप आ जाएगा,
दवाई अपने आप, जो इंजेक्शन आप चलाएंगे, जैसे एम्फोटेरिसिन बी बहुत कॉमनली यूज होता है, वो आप चलाएंगे, वो टिश्यू तक पहुंचेगा और वो हील अप स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्जरी से डरिए मत, या ये मत सोचिए कि अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक अर्ली इंटरवेंशन सर्जिकल डिब्राइमेंट है। जब तक पुरानी खराब चीजें, सड़ा हुआ स्किन जाएगी नहीं, तब तक नई स्किन आएगी नहीं, क्योंकि ब्लड सप्लाई वापस से रिज्यूम नहीं होगी। ठीक है, तो सर्जरी इज बीइंग डन यूजिंग एन एंडोस्कोप, दूरबीन, where we sedate a patient, anesthetize it, and endoscope is put into his her nose and reach the sinuses. Okay. हम सारा का सारा डेड डिकेइंग टिश्यू निकालते हैं, and that is how what is surgical intervention. कुछ फोटोज हैं, ये एंडोस्कोप है जो नाक के रास्ते सीधे आपके साइनसेस में जाता है और उस चीजों से हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज की हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। As all the recent cases reported with black fungus in India right now are associated with recovered COVID-19 status. ठीक है, so उनको मास्क पहनना चाहिए, स्पेशली वाइल विजिटिंग डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स, या फिर सॉइली प्लेसेस, या फिर गांव का इलाका, ग्रामीण इलाका जहां पर सॉइल ज्यादा है और उड़ रही है। क्योंकि मैंने सबसे पहली चीज ही आपको यही बोली थी कि म्यूकर माइकोसिस कहां रहता है, सॉइल में। गीली मिट्टी के आसपास की जगहें उसको बहुत अच्छी लगती हैं और वो वहीं पर ही ग्रो करता है। और हम जिस जगह पे रह रहे हैं ये मैक्सिमम ग्रामीण इलाका ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे ही कोविड रिकवर्ड पेशेंट, कोविड रिकवरी हो, आप मास्क जरूर पहनिए, ताकि अब जो स्पोर्स हैं, फंगस के स्पोर्स हैं, वो आपके नाक से अंदर साइनसेस में ना जा सके। ठीक है, सेम यही चीज के लिए कि सॉइल के जो स्पोर्स हैं आपकी बॉडी में कहीं ना घुसे, तो वेयर शूज, लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, ग्लव्स वाइल हैंडलिंग सॉइल, मतलब फार्मर्स के लिए, या गार्डनिंग आप कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, खाद डाल रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए। सेकंड, जैसे ये सब चीजें करें, अच्छे से नहाएं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अच्छे से स्क्रब बाथ वगैरह लें, ताकि अगर कोई भी स्पोर मिट्टी का या फिर कोई भी स्पोर फंगस का या मिट्टी कहीं पर भी लगी रह गई आपके शरीर पे, तो वो पूरी की तरह हट सके। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में दुनिया भाग रही है, घूम रही है कि क्या चल रहा, क्यों चल रहा है, ये तो एक नया आ गया ऐसा। तो जो मिथ है आपके ब्लैक फंगस के बारे में, ये क्या, कैसे, क्या है? Are doctors, media taking this disease up to scare people? No, this fungus isn't something new, जो मैं आपको पहले भी बता चुका कि ये कोई फंगस नई नहीं है, पुरानी है। अभी कोविड रिकवर पेशेंट्स के अंदर ये ज्यादा हो रही है। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इज इट कंटेजियस? सर उसको है, मेरे को हो सकती है क्या? पापा को हो गई, सर मुझे हो सकती है क्या? इसके लिए भी आइसोलेशन या क्वारंटीन करना है क्या? ये हमारे बहुत कॉमन क्वेश्चन रहते हैं ना। नहीं, हमें इस चीज के लिए कोई भी आइसोलेशन, क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। गोइंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, मैंने बताया इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेट, पेशेंट कोविड था, डायबिटीज है, इम्यूनिटी लो है, उस बंदे को ये हो सकती है। आपको, नॉर्मल इंसान को जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, उसको नहीं हो सकती। अब व्हाइट, येलो, सर ब्लैक, ये क्या है? ये सब फंगस के रंग है। हम जैसे लोग हैं, ठीक है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी है, बस सेम भाई, इंसान तो इंसान है, बाकी सब चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती हैं, सेम भाई। तो व्हाइट फंगस जो होता है वो एक अलग ग्रुप होता है, विच इज एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस स्पीशीज है। येलो इज कैंडिडियासिस, ठीक है, जो बहुत कॉमन होती है। तो ये भी, ये सब फंगस हमारे जिंदगियों में नॉर्मली चलती रहती है, ठीक है, बट हावी कब होती है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जब इम्यूनिटी वीक होती है तब ये जाते हैं। बट ये एस्परजिलोसिस, व्हाइट और येलो फंगस इतनी ज्यादा नहीं करती कि ये आपकी जान ले लें, या आपकी आंखें चली जाएं, या आपके दिमाग में घुस जाएं। बट म्यूकर माइकोसिस इज, जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत रिलक्टेंट फंगस है, ठीक है, तो एक बार लगती है तो आगे चलती रहती है और बोन को भी इन्वेड कर देती है। इसलिए इतना जत्न किया जा रहा है इसको रोकथाम के लिए, एंड वी हैव सक्सीडेड एज वेल। तो अब कितने टाइम के लिए कोविड-19 पेशेंट रिकवर कर गया है और उसको क्या क्या करना है? तो N95 का मास्क पहनना है उसको फॉर एटलीस्ट अप टू 6 मंथ्स। सॉइल रिलेटेड चीजें, गार्डनिंग, फार्मिंग, ये सब चीजें उसको थोड़ा सा अवॉइड करके रखना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसी के साथ बता देता हूं, जो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर एकदम से ये अपना कब लगाएं, वैक्सीनेशन कब लगाएं? मेरे को थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा CRP बढ़ा था, थोड़ा सा बुखार आया था। अगर आपको एक एपिसोड भी बुखार का आया है, आपको कोविड हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर आपका CRP बढ़ा था,
जो मतलब अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं चीजें बता सकता, बट मैं आपको यही एक सलाह दूंगा कि 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ऐसे ही चलना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहेंगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्फोटेरिसिन बी आजकल रेमडेसिविर जैसी हो गई है, अब सब लोग एम्फोटेरिसिन बी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, एम्फोटेरिसिन बी कारगर है इस चीज के लिए, वही इसका इलाज है, बट जब तक हम पुराने टिश्यू को हटाएंगे नहीं, तब तक कोई भी ड्रग काम नहीं करेगी। अगर आपको एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल रही है, आपके डॉक्टर ने सजेस्ट क्या किया है, उनसे जाके बात करिए। देयर इज ऑल्सो अनदर ड्रग विच इज एन ओरल प्रिपरेशन, मुंह से दी जाती है, दैट इज सिरप और इन अ टैबलेट फॉर्म, पोसाकोनाजोल, ठीक है, वो भी बहुत अवेलेबल है, और आराम से उससे भी काफी चीजें, बहुत मतलब माइल्ड डिजीज को सुधारा जा सकता है, बट डॉक्टर की सलाह, ईएनटी सर्जन की सलाह या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह के बिना नहीं। कमिंग टू द कंक्लूजन, इट इज अ कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज अगर वो बहुत ज्यादा नहीं बड़ी हो एंड कॉट अर्ली। तो आप जितनी जल्दी, ये चीजें मैंने जो आपको बताई, आपके सारी डाउट्स क्लियर करने के लिए था। डू नॉट फॉल इन द ट्रैप, विजिट योर डॉक्टर एंड गेट क्योर्ड। Panicking is not going to help. Keep following the necessary precautions. Wear the mask. Don't visit the farms. Eat healthy for good immunity. हर किसी ने आपको यही बताया है। The world will get back to what a beautiful place it was. Keep hoping for the better tomorrow and keep helping the society for it today. Thank you so much. And now I'll open it Thank you very much, sir. for questions. Sir, Any questions? Anything? yes, sir. Any participants want to ask question? If you have any query, please ask. Hello. Hello. Sir, good afternoon. This is Saidi Shinde from Sangli, Maharashtra. Hi. Hello. जी मैम। Yes, sir. Actually, मुझे म्यूकरमाइकोसिस के बारे में ही पूछना था, okay? बताइए ना। Because in between you are not audible, so maybe आपका कुछ पॉइंट रह गया तो मैं सुना नहीं होगा शायद, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। Okay. सर, म्यूकरमाइकोसिस में आई मीन क्या सीरियसनेस हो जाती है, या फिर ये इतना डेंजरस क्यों है कि अगर इनिशियली डायग्नोज ना हो तो सडन डेथ हो जाती है? क्योंकि मेरी कॉलोनी में ऐसे 2-3 केसेस हुए हैं। दैट इज ड्यू टू ओनली म्यूकरमाइकोसिस। नहीं, सैली जी, मुझे थोड़ा सा जो भी आपके घर पे या आस पास उसमें डेथ हुई, थोड़ा सा बताएंगे उनके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है, ओके? बिकॉज लाइक बोर्डिंग्स आर देयर, लाइक तो जब मैंने मैसेज करके या फिर कॉल पर पूछा तो दोज पीपल वर लाइक नहीं, म्यूकरमाइकोसिस ही डिटेक्ट हुआ था। इनिशियली बोल रहे थे कि कोरोना है, लेकिन कोरोना टेस्ट वाज नेगेटिव। उसके बाद म्यूकरमाइकोसिस डिटेक्ट हुआ एंड विद इन अ वीक ही वाज गॉन, ऐसा कुछ। देखिए सैली जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बोलूंगा कि लगभग एक आंकड़ा तो नहीं बता सकता, बट आपको ये बोलूंगा कि लगभग 30% लोगों का RT-PCR नेगेटिव आता है। दैट डजंट मीन कि वो कोविड नहीं है, ठीक है? यहाँ पर एक सोच बताता हूँ, बहुत लोगों की रहती है, सर टाइफाइड हुआ और टाइफाइड के बाद सर सांस लेने की दिक्कत हो गई। कभी टाइफाइड में सांस लेने की दिक्कत नहीं होती है, जो मैक्सिमम हमने यहाँ पर सुना या देखा। दूसरी चीज, कोविड की वजह से म्यूकरमाइकोसिस होता है, और म्यूकरमाइकोसिस से कोई इमीडिएट डेथ नहीं होती। ये पॉसिबल नहीं है कि इमीडिएट डेथ हो जाए किसी की भी। क्यों? क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस, जैसे कि मैंने आपको समझाया, आपने फंगस देखी है, नॉर्मली फंगस देखी है? Yes, definitely. I'm a microbiologist, so I have seen many media cultures. Okay. तो जैसे फंगस है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है। म्यूकरमाइकोसिस के अंदर एक ही चीज है जो उनको अलग फंगस, दूसरी फंगस से डिफरेंशिएट करती है, दैट इट कॉजेस बोनी इन्वेजन। तो बोन को अफेक्ट कर रहा है, बोन को परफोरेट करके वो आगे जा रहा है। द ओनली फेटल कंडीशन इन दिस इज कि अगर वो आपके ब्रेन पे पहुंच जाए, अगर वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, दैट इज द ओनली फेटल कंडीशन जिसके अंदर मोर्टेलिटी होती है। अगर वो आपकी आईज तक पहुंचे, आईज निकाल लीजिए, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम पैरानेजल साइनसेस, नोज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली डिटेक्शन। अगर हमने यहीं पर ही पकड़ लिया तो आंख भी बच जाएगी, दिमाग भी बच जाएगा और आप खुद भी बच जाएंगे। तो अगर या तो आपका जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी, बिकॉज इट वाज डिस्कस्ड ओवर अ कॉल,
by some attendant or some whatever the person, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसकम्युनिकेशन गैप होगा कि म्यूकर से नहीं, वो कोविड की वजह से हुआ होगा, क्योंकि लोग कोविड नहीं संभाल पाते, जिसकी वजह से म्यूकर माइकोसिस होता है। तो म्यूकर माइकोसिस से इमीडिएट कोई नहीं मरता। I see, okay. तो लाइक ये इतना डेंजरस है नहीं, राइट? मैम मैंने क्या बोला, इतना डेंजरस डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। डायबिटिक कंडीशन कैसी है, उसकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, और डिटेक्शन कब हुआ। अर्ली डिटेक्शन किसी भी डिजीज, बस। तो इतनी डेंजरस नहीं बोलूंगा। अगर हाँ, अगर इम्यूनिटी अच्छी है और अगर अर्ली डिटेक्शन है तो 100% क्योर है। ओके ओके जी। Thank you very much, sir, for such a deep information about mucormycosis. I think Sally ma'am got her answer. Yes, ma'am, definitely yes. Thank you so much. Anyone else? Anyone else want to ask anything? Good afternoon, sir. Sir, मैं audible? Good afternoon. Yeah, you are audible. Good afternoon. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है. I am Dr. Pratibha Yadav from Botany Department, SBN Government PG College. Hello. Hello, ma'am. कोविड नहीं है किसी पेशेंट को कंफर्म? क्या मैम? तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन who has not COVID positive and उसको ठीक है, तो कितना सा वो प्रोन है म्यूकरमाइकोसिस के लिए? मैम देखिए, एग्जैक्ट परसेंटेज मैं आपको नहीं बता सकता कि किस चीज के लिए, मतलब वो कितने प्रोन है डायबिटिक्स इस चीज के लिए, बट इन जनरल डायबिटिक्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन काफी सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए प्रोन रहते हैं। ठीक है, अभी कहीं ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी को भी डायबिटीज हो या अनकंट्रोल्ड शुगर है तो उसको सबसे पहले म्यूकरमाइकोसिस होगा। नहीं, ये एक म्यूकरमाइकोसिस जो अभी है इज बीइंग ओनली एसोसिएटेड विद कोविड-19 सम म्यूटेंट स्ट्रेन्स। ठीक है, अगर हम पहले के एक साल पहले जाते हैं, पिछली बार भी कोविड हुआ था, पिछली बार भी हमने सेम दवाइयां दी थी, पिछली बार भी लोगों को ऑक्सीजन लगा था, बट पिछली बार किसी को म्यूकरमाइकोसिस नहीं हुआ था। नॉट इवन अ सिंगल केस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस वाज बीइंग कंफर्म्ड इन इंडिया और इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बट इस बार ऐसा क्यों हुआ? दिस इज अलार्मिंग बिकॉज इस बार कुछ स्ट्रेन्स में ऐसी म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से ये हुआ। तो अभी जो डायबिटिक्स पहले हैं जिनको कोविड नहीं हुआ, दे आर एट द वेरी लेस चांस, मतलब मे बी 0.01%, ठीक है, टू गेट अफेक्टेड बाय म्यूकरमाइकोसिस इफ दे आर नॉट अफेक्टेड बाय कोविड-19 येट। ओके, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम मैम। Any other questions? गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर, जैसे कोविड पेशेंट रहते हैं उनको अधिकतर जो जैसे वो अफेक्ट करता है, तो लेग्स की आर्टरी पे कैसे अफेक्ट हो जाती है? किसकी सर, आर्टरी? 2-3 केसेस, लेग्स, पाँव की आर्टरीज। मैंने आपको सबसे पहली चीज क्या बोली थी कि इट्स अ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, मतलब जो खून है वो गाढ़ा है। ठीक है, और जो हमारी टांगे हैं वो नीचे हैं, दे आर, मतलब जो टांगों में से खून आना है टुवर्ड्स द हार्ट, मतलब बैक जो खून आना है, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट में खून ऊपर चढ़ रहा है और हार्ट में आ रहा है। ठीक है, और खून आपका गाढ़ा है तो धीरे धीरे चढ़ेगा, और टांगों पे आना है तो जो पीछे काफ मसल्स हैं, ठीक है, जो पिंडलियों का हिस्सा है, वहां पर खून का दौरा वैसे ही धीरे हो जाता है। ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी प्लस हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, मतलब कि खून गाढ़ा है, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से टांगों के पीछे अक्सर सूजन रह जाती है, और वेरिकोस वेन्स जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सूजन, मतलब जो फूल गई है नसें, तो वो उस चीज की वजह से हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि डी डाइमर की जांच लगभग 1 हफ्ते में एक बार करवाएं अगले 4 हफ्तों तक, और शुगर मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली करते रहें। ओके, थैंक यू सर। Any other participants? Yes, ma'am. I would like to ask something, ma'am. Yes, sir. Good afternoon, sir. This is Dr. Sharat Singh Lodhi. Good afternoon, Lodhi ji. Sir, I would like to ask that is there any novel strain we have found? Sir, what is a novel strain? Novel strain is something which is new. So COVID is itself new. मतलब corona strain is itself new. And अभी 3 strains मिले हैं already. जिसको एक तो about mucor. About mucor? No. The studies are ongoing. But the novel strain for mucor has been identified yet. Yeah, and sir, is there any prophylaxis apart from the D-dimer and blood sugar level? No, sir.
करंटली देयर इज नो प्रोफाइल एक्सेस। मैंने बस यही बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दो ही चीजें हैं, डी डाइमर और आरबीएस और कोविड स्टेटस। तो नमनेस बस देखते रहिए कि कहीं नमनेस तो नहीं है चेहरे के ऊपर, या फिर कहीं पर भी कोई स्वेलिंग नहीं है ओवर द पेरिऑर्बिटल एरियाज। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Okay, sir. And gargling and Net Kriya will make any difference? Yeah, they'll surely, obviously help you. Something is better than nothing. Okay, okay. Thank you very much, sir. You're welcome. Dr. Shubham Jain, do you want to ask any question? Actually, here's type and question, sir. Is there any dietary immunity booster for mucormycosis as it was for COVID? देखिए, there is no dietary supplement which can help not to have mucor, but there are many supplements which can boost up your immunity and जिसकी वजह से आपको म्यूकर क्या कोविड नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ भी अच्छा, मैं तो ये बोलूंगा कि कुछ भी ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं खा सकते, सब खाइए, पर इतना खाइए कि जो आप पचा सके और जो पच सके। अगर कोई भी बोले कि बादाम में इम्यूनिटी है, लोग 1 किलो बादाम लेके खाना चालू कर देते हैं, उससे फायदा नहीं होता, उससे पेट खराब होता है। ठीक है, तो जो भी खाइए अच्छा खाइए और अच्छी क्वांटिटी, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में खाइए, आपको हर चीज सूट करेगी एंड दैट विल बेसिकली बूस्ट अप योर इम्यूनिटी एंड बूस्ट अप इम्यूनिटी विल कॉज, ना ही कोविड होगा ना ही कोई और चीजें होंगी। बेसिकली कोविड क्या है, सर्दी खांसी, दैट्स इट। थैंक यू सर। आई थिंक Dr. Shubham Jain got his answer. Any more participants want to ask any questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, Okay, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. I am Akanksha Shrivastava from Bhopal. Hello, Akanksha. Sir, I have a question. कि हाँ सर, जैसे ये कोविड है, एक्चुअली मुझे भी हो चुका है कोविड। सो मैं तो रिकवर सर कर गई हूँ, बट ऐसा कहते हैं कि जैसे कोविड होने के बाद आपके अंदर नेचुरली आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, राइट? और अभी सर आपने बताया कि 3 मंथ्स बाद ही आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज आपके अंदर रहती हैं, तो आपको ओवरडोज लेने की जरूरत नहीं होती है, आप उसके बाद वैक्सीनेशन करा सकते हो। बिल्कुल सही बात है। बट सर ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये सर जो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, क्या इसका भी कुछ रेपुटेशन हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सेकेंड, इन द कोविड-19 एरा जो अभी चल रहा है, दिस म्यूकरमाइकोसिस एसोसिएटेड विद कोविड-19 इज समथिंग न्यू। यस, ठीक है, जो पिछले लगभग 2 महीनों में देखा गया है। इवन यू हैव सीन दैट, इवन मीडिया हैव शोन अस एंड इवन आई हैव सीन दिस। ठीक है, तो अभी जो मीडिया ने अभी जो हुआ है, बोला भी तो कलर ने कराड़े लागे। तो अभी जैसे ही ये जो हुआ है कोविड-19 के एरा के अंदर, जो म्यूकरमाइकोसिस एसोसिएट हुआ है, ये अभी होना स्टार्ट हुआ है। तो मैं आगे के बारे में आपको अभी विदाउट एनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बता पाऊंगा। द रिसर्च इज बीइंग डन बाय मेनी ऑफ द प्रोनाउंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो जैसे ही कुछ भी रिजल्ट्स आएंगे कि आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर अभी कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं हुई है फंगस में, विच इज वेरी अनलाइकली, ठीक है, तो अगर नहीं हुई है तो वो आगे जाके बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपकी इम्यूनिटी रिकवर करेगी, नॉर्मल पे आएगी, आप नॉर्मल आ जाएंगे, आपको कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करेगी। बट अगर आपकी इम्यूनिटी वीक ही रहती है, तो आपको म्यूकरमाइकोसिस कुछ नहीं हो सकता। यस सर, सर ऐसा जैसे कोविड में देखा गया है कि मेरे सर नोन में भी थे कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिनको 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में रिपीट हुआ था, कोविड रिपीट हुआ था। सो मेरा क्वेश्चन से यही था कि जैसे उन्हें कोविड रिपीट हो गया है, तो क्या सर फंगल इन्फेक्शन भी रिपीट हो सकता है वंस अगर एक बार वो फंगस से इन्फेक्टेड हो गए हैं तो? मेरा आंसर भी बिल्कुल यही है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी लो रहेगी तो वापस से फंगस इन्फेक्शन, फंगस रीएक्टिवेट हो सकती है। इट इज ऑल हुआ होगा, क्योंकि पहले स्ट्रेन के अगेंस्ट में तो एंटीबॉडीज हुई है बॉडी की, तो वापस से अगर पहले फंगस हो चुकी है तो हो सकती है, बिल्कुल चांसेस हैं। Yes sir, okay, thank you so much sir, thank you, and very informative session sir.
थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच. Is there any questions? So I think all participants are satisfied with your excellent lecture. Some questions are there in Thank chat you so box. much, ma'am. Thank you. Some So questions much. are there in chat box. Okay. Okay. Sir. Should I check the checkbox? Yes, sir. Sir, Indra Parwar, if the eyes are surgically removed, can the patient, the eyes another person died accidentally or donated eyes? Ma'am, this depends upon the ophthalmologist and the condition की अभी ऑर्बिट की कंडीशन क्या है, जहां से आपने आंख निकाली वहां पर नसों की कंडीशन क्या है. जनरली क्या होता है कि जब भी आप किसी की आंख निकालते हैं तो आंख निकालने की सिचुएशन क्यों पैदा हुई, क्योंकि आंख तो एक सामने सिर्फ एक लेंस है, जो चीजें चल रही हैं वो हमारी आंखों के पीछे हैं. ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आंखों से डायरेक्टली पीछे आपको ये लेके जाती है, इमेज बनाती है दिमाग में. तो मैक्सिमम केसेस के अंदर ये होता है कि ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आंख निकालनी पड़ती है. अगर नस सड़ गई तो आंख सड़ जाती है. तो अगर आंख निकाली है और ऑब्वियसली नर्व सड़ी हुई है तो आप किसी की भी डोनेटेड आई नहीं लगा सकते. I think Indra Parmar got her answer. Sir, there is another question. Sir, which age patient was dead due to this fungus? मैंने ये भी इसी चीज का भी यही आंसर है. हाँ, इसका भी यही आंसर है कि डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी. इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी एंड द ब्लड शुगर लेवल्स. इसके अंदर भी ये कुछ नहीं कह सकते. एज इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, किसी भी एज में पॉसिबल है. आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स हु आर सफरिंग एट द एज ऑफ 30 years from mucormycosis, and I have seen a patient of 56 65 years old female who have suffered from this. Thank you, sir. Yogeshwari, what your answer? Ambish Nigar want to ask, any preventing drug are available or not? Ma'am, the preventing drugs I have already told. There's an injection, amphotericin B. The government is trying to get it, to sort out the availability issues. I have read the newspaper. आज ही 1,20,000 units आए हैं इंदौर में ही of amphotericin B from Jharkhand. तो conditions are getting better. The patients are getting less. सब चीजें normal हो रही हैं, धीरे हो रही हैं. There is also another drug जो एक tablet या फिर syrup आता है, posaconazole, that is readily available in the market. ठीक है, and it's quite efficient as amphotericin B is. मैं एक ही चीज वापस बोलूंगा अभी भी, don't run after the drug. जैसे कि लोग भागे हैं रेमडेसिविर से. रेमडेसिविर was not a life saving drug, but people made it. Amphotericin B is not a life saving drug. People are making it. Don't make it. जब तक टिश्यू नेक्रोज है, जब तक टिश्यू को आप हटाएंगे नहीं, तब तक कोई भी फायदा नहीं है कुछ भी करने का. अगर टिश्यू नेक्रोज हो गया है, सड़ गया है, जब तक सर्जरी नहीं होगी तब तक ड्रग नहीं पहुंचेगी. तो कोई फायदा नहीं है टू रन आफ्टर द इंजेक्शन की इंजेक्शन मिलेगा तब सर्जरी करवाऊंगा. नहीं, गो एंड गेट चेक बाय द डॉक्टर, गेट एडमिटेड, यू विल बी ट्रीटेड. डोंट मेक अ केओस सिचुएशन. सब चीजों का इलाज संभव है अगर आपका दिमाग सही है. दैट्स इट. तो उसको सही पॉजिटिव अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच पे रखिए. एवरीथिंग विल बी फाइन. थैंक यू सर. Sir, Abhishika Joshi wants to ask, damaged lungs are transfer or not COVID patients? The damaged lungs, actually the lungs, if the lungs are being damaged, there is absolutely a thing called as lung transplant, but that happens only in very few cases in Chennai, Apollo Hospital, and that is associated with heart and lung transplant. In most of the cases, both are being transplanted. But COVID-19 का infection की वजह से heart transplant is very rare. I think I can remember there was one single episode जिसके अंदर ये transplant हुआ था of a radiologist, MD radiologist, 30-year-old female she was, and she eventually died. क्योंकि अगर ongoing infection है and if you haven't treated the ongoing COVID infection, तो कोई फायदा नहीं है lung transplant करने का. COVID उसको भी खा जाएगा. Plus transplant is not very easy. It's not like कि आपने एक तार हटाई और आपने जोड़ दिया और transplant हो गया, it's successful. No. क्योंकि किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी organ हम transplant कर रहे हैं, for the body it's a foreign body. Body won't accept it. ठीक है? Body will try to reject it. That's the issue where it comes. जब हम body की immunity low करते हैं ताकि वो organ को accept करे. जैसे किडनी को किसी की transplant किया तो हम उसको काफी ऐसी drugs चलाते हैं जिससे उसकी immunity low हो और किडनी उसकी एक्सेप्ट कर पाए बॉडी. एंड दैट इज व्हाई म्यूकरमाइकोसिस कम्स, क्योंकि इम्यूनिटी लो है,
वो उसको पकड़ लेता है। तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आप लंग ट्रांसप्लांट करें कोविड पेशेंट में और वो बच जाए, बिकॉज हार्ट इज इक्वली अफेक्टेड, ब्लड इज थिक, प्लस द इन्फेक्शन इज ऑनगोइंग कोविड-19। तो इसलिए ऐसे एक ही केस हुआ है और वो भी इवेंचुअली इट वाजंट सक्सेसफुल। Yes, sir. Thank you, thank you, sir. I think every aspect of mucormycosis has covered by you, sir. It was an excellent lecture. Thank you so much, ma'am. Yes, sir. I think no doubts are there. Thank you so much to all the faculty, and my sincere thanks to Veena ma'am for giving me this opportunity to present this on such a large scale and make people educate about this. Thank you so much, Veena ma'am. Thank you very much, sir. Thank you, Batra sir, for such an excellent, informative and valuable lecture on mucormycosis. He has explained in detail about causes, treatment and precaution. I hope that after this lecture, you worry to infect with mucormycosis will have reduced to some extent. It's a curable disease and can be prevented by measures suggested by our speaker. Wear mask and sanitize and eat healthy food to enhance the immunity. Good immunity plays major role to protect from mucormycosis and other diseases. Thank you very much, sir. खुश रहें, हंसते रहें. Thank you so much. Thank you, sir. Now I would like to invite all the our principal, respected Dr. R.N. Shukla sir, for chairmanship. Sir, please. सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। डॉक्टर बत्रा जी को बहुत स्वागत है इस महाविद्यालय के हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। जिस सहभागिता और उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आपने आज के भय और डर के वातावरण में अपने विषय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, विषय प्रवर्तन किया है, इससे इस पिछड़े क्षेत्र में बड़ा लाभ मिला है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे प्रिंसिपल और डॉक्टर वीणा सत्य मैडम ने जिस विषय को उठाया है आज के इस पावन दिवस पर, जैसा आप सब जानते हैं कि जिस ऑक्सीजन की कमी के कारण पैंडेमिक वातावरण दिखाई दे रहा है, उस ऑक्सीजन की वृद्धि में पर्यावरण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर बात करने के लिए आज का दिन चुना गया है। मैं डॉक्टर वीणा सत्य मैडम को इसके लिए बधाई भी देता हूं, संस्था की ओर से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल के माध्यम से ये आज की कार्यशाला, ये वेबिनार आयोजित किया गया है और इस पर जिस विषय को चुना गया है, एक अद्भुत संयोग कहेंगे कि डॉक्टर बत्रा जो महानगरीय संस्कृति में जन्म लेते हैं, वे भारत के आकांक्षी जिले के अत्यंत पिछड़े बड़वानी जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जिस तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने बाइलिंगुअल बात की, आज जितना कमांड उनका अंग्रेजी में था उतना ही उनका कमांड आज हिंदी में दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस रिमोट एरिया में बहुत सारे प्रतिभागी हमारे हिंदी भाषी भी हैं। ऐसी स्थिति में विषय का प्रवर्तन जिस तरह से आपने किया, उससे निश्चित रूप से जागरूकता आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत छोटी सी बात कह करके आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब भी हम देखें तो ये म्यूकरमाइकोसिस क्या है, बहुत अवसरवादिता है इसकी। उसने अवसर देखा कि लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, उसने अपना अड्डा जमा दिया आकर के यहाँ पर। ऐसी स्थिति में जिस तरह से आपने उसके बचाव पर, इम्यूनिटी डेवलपमेंट पर, ड्रग्स पर न जाने के लिए जब तक अनिवार्य न हो आपने अपनी बात रखी है, ये बहुत आवश्यक है। डॉक्टर बत्रा साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे प्रतिभागी हैं, ये आज के पीयर ग्रुप है, ये पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए अपना संदेश लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने राज्य को, अपने देश को बचाने में, यहाँ तक कि मानवता को बचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के इस आयोजन में डॉक्टर भारती महाजन, डॉक्टर सपना गोयल का भी विशेष योगदान रहा। पूरा बॉटनी विभाग हमारा उपस्थित है। विशेषकर बड़वानी जिला चिकित्सालय में जहाँ डॉक्टर बत्रा कार्यरत हैं, वहाँ के सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर अरविंद सत्य जी के सदा सहायता का भी मैं कायल हूँ कि जब भी हमने उनसे चाहा है, उन्होंने इस महाविद्यालय में सहयोग प्रदान किया है, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर के लेकर हो या अन्य सुविधाओं को लेकर। आज भी वो हमारी कार्यशाला में जुड़े हुए हैं।
अत्यंत व्यस्तता के बीच यदि सत्य साहब हमारे बीच जुड़े हैं तो ये वीणा सत्य मैडम को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उन्हें प्रमोट किया और हमें डॉक्टर बत्रा जैसा रिसोर्स उपलब्ध कराया। और आज इस पैंडेमिक माहौल में जिस तरह से हम सब सजग होकर के आने वाले कल की चिंता करते हुए लोगों को जागरूक करेंगे, इसलिए वेबिनार में आप सभी का मैं महाविद्यालय की ओर से अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। भारती महाजन मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे संचालन के लिए। वीणा सत्य मैडम समय समय पर इस तरह की कार्यशालाएं कराती रही हैं। पूरे वर्ष भर, पिछले वर्ष भी मैडम सत्य ने ऐसी कार्यशाला करवाई थी पर्यावरण से लेकर के इको क्लब के माध्यम से भी, जब से आए हैं बहुत सक्रिय हैं। और हम निश्चित रूप से इस बीमारी के साथ साथ अन्य बीमारियों पर जिस पर प्रकाश डाला गया है उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बत्रा साहब को, डॉक्टर अरविंद सत्य साहब को, समस्त प्रतिभागी साथियों को भी मैं महाविद्यालय की ओर से स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your enthusiastic and inspiring words and chairman's speech about Environment Day and topic of today's webinar.